नमस्ते, खुशामदीद। मैं अर्चना निरंतर संस्था से। निरंतर जो कि एक रिसोर्स सेंटर है जेंडर और एजुकेशन पे। हम लोगों का लंबे समय से काम रहा है जेंडर और यौनिकता के मुद्दों पे, और खास तौर से शिक्षा के नजरिए से। और इस संदर्भ में बहुत अलग-अलग तरह से हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुद्दों के साथ जुड़े रहे हैं। Nirantar is not a direct intervening organization in the context of gender-based violence, but we have been engaging with this issue from gender and sexuality lens and trying to understand what are the new dimensions, what are the new ways in which we can understand gender-based violence if we bring the lens of sexuality, and we also, if we expand even the understanding of gender, because as we all know, for a longest time, gender-based violence has been only limited to the violence against women. So how are we now looking at gender-based violence, and what are the new things that are emerging to be engaged in the area of gender-based violence? And if there are new questions that are needed to be asked, और जो संस्थाएं इवन इस पे काम कर रही हैं, जिस तरह के अलग अलग इंटरवेंशंस हो रहे हैं, वहां पे भी क्या नई चुनौतियां निकल कर आ रही हैं, क्या नए सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमको as organizations who are involved in different kinds of intervention, so even intervention is not of one kind. So I am sure there are also challenges and questions also of different nature as we come face to face with them in our experiences, or in the areas where we are more passionately working. So I'm very happy to have a very diverse panel of panelists who have been engaging with issues of gender-based violence from various perspectives. And really, I think this is giving us the spectrum of interventions also. And then the panelists are representing the rich discourse that exists in today's gender-based violence work. तो मैं एक एक करके हमारे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगी. Of course, starting with a big thank you for joining us for this discussion, and I hope that this discussion will be able to push some boundaries of how gender-based violence is being looked upon, or addressed and dealt with in the present discourse. I will start with Krishna Panchali. कृष्णा स्वाति ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुजरात में लोकेटेड है, उसके में काम करती हैं. और कृष्णा की जो एंगेजमेंट है जीबीवी पे वो बहुत अलग अलग तरीकों से है, जिसमें वो कम्युनिटी एंगेजमेंट, आर्ट, कल्चर, मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव, मोबिलाइजेशन, रिसर्च, बहुत अलग अलग तरह की चीजों के साथ में के थ्रू इसमें काम करते हैं. सॉरी. Krishna has also been involved in building safe listening circles for women and girls, and they believe that safe cities and safe public spaces are at the core work of preventing and responding to GBV in public spaces. And very quickly, Swati, which is Society for Women's Action and Training Initiative, is a feminist organization जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पे काम करती है जीबीवी के अगेंस्ट. और इनका ज्यादातर काम जो है वो हेल्थ, एडोलेसेंट गर्ल्स और विमेन्स एक्सेस टू राइट टू लैंड एंड गवर्नेंस के मुद्दों पे रहा है. थैंक यू कृष्णा फॉर ज्वाइनिंग. We have with us Barsha Mishra. Barsha works in Partners for Law in Development, PLD. And Barsha भी पेशे से lawyer हैं,
और इनको लगभग 14 साल का अनुभव है इस सेक्टर में काम करते हुए। और इनका मुख्य फोकस जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड जेंडर जस्टिस पे रहा है। और खास तौर पे पॉश के और जेंडर राइट्स के पॉलिसी राइटिंग और रिसर्च में इंगेज करती हैं। पीएलडी एक नेशनल लेवल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कानून और सामाजिक न्याय के मुद्दों पे काम करती है और कई तरह के एविडेंस बेस्ड रिसर्च, स्टडीज और लीगल एक्सप्लेनर्स बनाने में काफी पीएलडी का मटेरियल मशहूर है और बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। और पॉलिसी एडवोकेसी के सेक्टर में भी पीएलडी has played a big role as a organization which is located within the women's movement. हमारे साथ पुष्पा जी हैं। पुष्पा वनांगना संस्था जो कि बुंदेलखंड में है उसकी डायरेक्टर हैं। पुष्पा वायलेंस के मुद्दों पे सीधे तौर पे काम करती आई हैं, सिंगल मदर हैं और अपने बेटे को पालने के साथ साथ में एक जो बड़ा काम इन्होंने किया है, बुंदेलखंड रीजन जो कि एक तरह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। उसमें 25 से 30 साल का लंबा अनुभव है केस वर्क पे और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे काम करने के लिए, खास तौर से दलित और आदिवासी समुदायों के साथ में। और वनांगना एक ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महिला मुद्दों पे काम करती है। पिछले 20 सालों से वायलेंस के मुद्दों से लेकर आजीविका के मुद्दे, स्किल डेवलपमेंट और अलग अलग तरह के राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स के पे काम करते हुए जो वंचित समुदाय के महिलाएं हैं और लड़कियां हैं उन पे काम करती है। Now we also have Dr. Manoj Kumar with us, who is a clinical director of Mental Health Action Trust, which is a non-profit NGO based in Kerala. Dr. Manoj also himself is a trained sorry, just give me a moment. Psychiatrist. Which is and MHAT is based in Kerala, which is working with tribal communities and other marginalized communities, which I think again is a very innovative sort of work in the context of mental health work that is taking place in India. Dr. Manoj has done his medical college and trained and worked as a psychiatrist in Vellore, Ranchi and the United Kingdom, and he has more than 37 years of experience in the field of mental health. MHAT, like I was saying, is a non-governmental organization which works with government and non-government sector players and primarily working with communities which are generally do not have access to mental health services, like tribal communities and other marginalized communities. And MHAT is also situated at places like coastal belt and other areas which are populated by tribal communities. So these are our panelists. I am not introducing our fifth panelist who will join us 1 hour later because of some engagement. Hi, I have actually joined. Oh, hi, Koyal. Oh, Hi. hello, Koyal. That's good. We'll quickly introduce you then. Yeah, Koyal, we'll just introduce you.
Koyal Ghosh, who is a managing trustee of Sappho for Equality, is a gender non-conforming, non-binary queer activist from Calcutta. And they have a lot of experience of working with gender non-conforming, non-binary community people. They have done their masters in English from Lady Bourbon College, Kolkata, and has PG diploma in communication from Jadavpur University. Sappho for Equality was established in October 2003 and is a registered organization in Eastern India and is the only registered organization in Eastern India that works on the rights and social justice of sexually marginalized persons, assigned female gender at birth, and transmasculine persons. It uniquely works to create bridges between the so-called normative and non-normative populations in our society and positions gender sexuality within existing development discourse. Thank you, Koyal, for joining us on time. Yeah, I hope I have introduced all our panelists, trying to also not read everything which was on the screen. And welcome once again, and thank you for joining. Like I said in the beginning, this discussion is on gender-based violence, and the idea is really to move beyond violence against women and expand the way gender is being understood. I mean, of course, I do not have to say it again. The discourse has already gone way ahead in understanding gender in a much more non-conforming, non-binary ways. However, maybe the kind of discussions that we are having here now are not the discussions which are having in the mainstream or are as popular as we would all like it to be. And I want to just quickly start with, so that we are all on the one page in terms of how we understand gender-based violence. I mean, I don't think we need to start with this question, what is gender-based violence? Because there is a very common understanding of this definition. और जेंडर बेस्ड वायलेंस को मतलब हम सब ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, जब और यूएन की भी कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस को हम देख रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि नए सवाल उभर रहे हैं उस संदर्भ में. और अगर हम थोड़ा सा इस बारे में बात करें कि जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं आज के संदर्भ में, तो अगर सभी लोग अपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे या जो आपका स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन है उसके संदर्भ में यदि हम थोड़ी सी ये बात करें कि आपको क्या गैप्स नजर आते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि जो डिस्कोर्स है जेंडर बेस्ड वायलेंस का और जिस तरह से ये आमतौर पे समझा जाता है. और मैं सिर्फ क्विकली एक पीपीटी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिस तरह से यूएन बॉडीज और जो एक आम तौर पे सॉरी मुझे शेयर स्क्रीन करना होगा. गिव मी अ मोमेंट. कैन आई शेयर स्क्रीन अंकिता प्लीज? Yeah, go ahead. No, it says I'm not the, I can't. I'll make Host you the has host. disabled. Yeah. और उसके अगर हम उस डेफिनेशन को ये माने कि वो एक लार्जर डेफिनेशन है जो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है, तो फिर हम अपने अपने क्षेत्र से या अपने अपने अनुभव के आधार पे अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि आज की डेट में हमें वहां पे क्या गैप्स नजर आते हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे हैं. अर्चना, आप अब शेयर कर सकते हैं. जैसे कि ये UNHCR की डेफिनेशन है और यूरोपियन कमीशन की डेफिनेशंस हैं. Gender-based violence refers to harmful acts directed at an individual based on their gender. It is rooted in gender inequality, the abuse of power and harmful norms.
but it is also about violence, persons that affects persons of a particular gender disproportionately. I think this is a little bit of a movement from the previous definition, where they are also seeing gender marginalization as a group, as a collective sort of idea. And then these are some of the forms of or the ways in which gender violence impacts people in different ways. So so just keeping this as a broad understanding, and I thought if this can be like a sort of one larger definition that we understand as gender-based violence, if you could reflect that, what are the gaps that you are experiencing or you think are in the present day understanding of gender-based violence? You have 2 to 3 minutes to reflect on this, and then I will get back with my next question. पुष्पा, ये सवाल है कि हम जिस तरह से आज के समय में ये जेंडर बेस्ड वायलेंस को समझते हैं, इसके ये जो एक समझ है, ये जो एक परिभाषा है, इस परिभाषा के संदर्भ में जब हम अपना काम देखते हैं और अपने फील्ड के अनुभव देखते हैं, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि यहाँ पे नहीं आ पा रही हैं, या उन अनुभवों को नहीं ला पा रहे हैं, या वो सवाल इस परिभाषा में नहीं झलक रहे हैं? क्या हम कृष्णा से शुरू कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद वी कैन गो टू कोयल, फिर हम पुष्पा के पास आएंगे, देन मनोज, yeah, and then Barsha. Yeah, Barsha, why can't I? Acha. Yes, please. Thank you, Archana, for this brief. So जो मुझे समझ है लिंग आधारित मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर जो समझ है, अकॉर्डिंग टू व्हाट माय एक्सपीरियंस, मतलब प्रीवियसली व्हेन आई वाज मतलब अर्बन एरिया में जब काम कर रहे थे और रूरल एरिया में काम कर रहे थे, सब आई गॉट टू नो दैट द वे द वायलेंस अकर्स एक्चुअली, मतलब जो यू नो सिटी लेवल में, लाइक आई वाज स्टेइंग इन मुंबई बिफोर, सो उसमें जिस हिसाब से डिफरेंशिएट करके जो अभी के सिनेरियो में है जो रूरल एरिया अहमदाबाद में, सो इट इज वेरी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस जो है, जो आपने अभी दिखाए, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड जो फाइनेंशियल और सब जो रहते हैं, सो उसमें इट इज सीन दैट वो एकदम सिंपली यहाँ पे दिखते हैं इन अर्बन सेटअप. वो अर्बन सेटअप में यू कैन डिफाइन कि भाई ये है, मतलब ये ये सेक्सुअल वायलेंस, यू कैन क्लियरली डिफाइन. बट व्हेन यू कम टू द रूरल सेटअप में, द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस रिमेन्स द कांस्टेंट थिंग, बट द वे द वायलेंस अकर्स, मतलब जिस हिसाब से जो कस्टम्स है, जो रूढ़ी रिवाज है, जो अलग, मतलब दे आर सो डिफरेंट एंड दे आर सो मच मतलब एक ऐसा है कि जो डिस्ट्रिक्ट है महिसागर, ओके, विच इज 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद, एंड उसमें 17 विलेजेस है. तो 17 विलेजेस में भी जो जिस हिसाब से रूढ़ी रिवाज की वजह से जो वायलेंस हो रहा है, वो भी काफी डिफरेंट है. सो कभी कहाँ पे ब्राइड प्राइस चल रहा है, उस तरीके का वायलेंस चल रहा है, या फिर कभी कहाँ पे दहेज का है. सो यू नो देयर इज अ वेरिएशन विद इन द सेम एरिया आल्सो. सो you know it matters a lot के किस हिसाब से ये वायलेंस अकर हुआ है. एंड आई मुझे क्या लगता है कि गैप ये है कि वी वेरी प्रिसाइसली कि ऐसा ऐसा मतलब वी गिव अ डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू द मतलब सैंपल साइज. बट अगर देखने जाए, actually if we get to see, the definition itself varies everywhere. The forms of also today to the LGBT मतलब जो community है, to the trans community, to the
women and young girls का है, the form of violence differs a lot actually. So that is what I feel is a gap that I think people should be understanding. Thank you, Krishna. Koyal, would you like to, respond? यस अर्चना मैम, आई थिंक हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वियर या ट्रांस हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे क्राइसिस इंटरवेंशन में हम देख रहे हैं कि जब घर वाले वायलेंस कर रहे हैं, घर में बंद करके रखा है, मार रहे, पीट रहे, घर से निकलने नहीं दे रहे, कॉलेज में नहीं जाने दे रहे, स्कूल में नहीं पढ़ने दे रहे और मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करे, विथहोल्ड करे डॉक्यूमेंट्स, तब हम जब जाके पुलिस पे कंप्लेन करते हैं, जब वो अपना खुद पुलिस में कंप्लेन करना चाहते हैं, हमको बताते हैं, तो पुलिस घर वालों की तरफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि इवन योर नेटल फैमिली मेंबर्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वायलेंस व्हिच कुड बी मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, एनी सॉर्ट। जैसे कन्वर्शन थेरेपी हो रहा है, जोर जबरदस्ती दवाइयाँ खिलाई जा रही है, तो ये चीजों को पुलिस वो नहीं लेती, वो लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते और हमेशा ऐसा बोलते घर वाले तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। सो मॉरल पुलिसिंग ज्यादा है, लेकिन जो लीगल रिकॉर्स है उसमें ज्यादातर लोग फेस नहीं कर पाते और बहुत सारे ऐसे क्वेयर लोग हैं, ट्रांस लोग हैं जो घर छोड़ के आना चाहते हैं, उनको उनके घर में नहीं रहना क्योंकि जोर जबरदस्ती उनका शादी करवा दे रहे हैं ट्रांस मैस्कुलिन इंडिविजुअल्स को। तो वो वक्त हम देख रहे हैं कि जब हम बात करते हैं कि आप प्रोटेक्शन दो, आप सेफगार्ड करो, आप पुलिस प्रोटेक्शन दो, तो तभी भी हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व है उनको हैरास किया जा रहा है, उनको पुलिस आके उनके शेल्टर होम्स में अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा कलकत्ता में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि अगर ऐसा मतलब so gender-based violence has its own layers when it comes to queer trans people, but that layer is still unrecognized. Law mein hai, there's legal recourse, but when you try and put the stakeholders to take accountability of their actions, वो नहीं हो पा रहा है, and it's getting very very disturbing, distressing. कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि ऐसे मुर्शिदाबाद बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे कोलकाता से 253 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में, वहाँ पे एक ट्रांस कपल को, मतलब एक कपल को वो लोगों ने उनका वीडियो बनाया, उनको इनर थाइज में ऐसा बड़ा बड़ा वो क्या बोलते हैं काट को लेके उसको जला के उनको बर्न वुंड्स दिया है, एंड इट्स ग्राफिक द अमाउंट ऑफ वायलेंस दे आर डूइंग। और फिर भी दे डोंट हैव द एबिलिटी टू कम टू अ सिटी, क्योंकि ना उनके पास वो पढ़ाई है, ना वो, उनको डर लगता है कि हम यहाँ पे कैसे सस्टेन करेंगे। सो ऐसी कुछ चीजें भी हैं जो अनरिकॉग्नाइज रह रहा है, जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम देख रहे हैं कि उतना काम नहीं कर पा रहे। तो वो सिस्टमेटिक फेलियर पे मेरा हमको बहुत गुस्सा है और हमको लगता है कि इस पे काम होने की जरूरत है। सो थैंक यू। Thank you, Koel. Very important points. I think natal family violence is not recognized as much as the other forms or other ways of violence. And of course, sexual orientation is another important connection that is not seen enough. पुष्पा, आप आएंगी? हाँ जी। जी, तो जेंडर बेस्ड बैलेंस में मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि एक पक्ष जो होता है उसके पास सत्ता होती है और दूसरा पक्ष जो होता है वो उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो सत्ता विहीन होती है। और शुरू से ही जो हमारा धर्म है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीत रिवाज है, ये सारी चीजें एक तरह से ये दोनों में फर्क रख करके और पूरी एक तरह से मर्द और औरत को, एक लड़की को और एक लड़के को शुरू से तैयार किया जाता है। और जब वो तैयार होते हैं तो भी होता है ना कि औरत के हाथ में तो कुछ भी नहीं होता है। एक मतलब मैं ये कहूँ अगर तो मैं बहुत मतलब कह सकती हूँ कि वो बगैर पैसे की नौकरानी होती है घर में और एक के पास सारा पावर होता है। तो इसलिए शायद वो जिस तरह से चाहता है, जैसे जो हमारे इलाके की सच्चाई है कि एक आदमी औरत को जिस तरह से रखना चाहेगा
उस तरह से अपने तरीके से, मतलब वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी बैल, उसके हाथ में लाठी है और वो एक तरह से काम करने वाली है, तो उसको उसी तरह से चलाते हैं। जब उनका जी में आया तब वो अपना उसके साथ बात किए, नहीं जी में आया तो उसको जिस दिन मन किया घर से निकाल दिया, जिस दिन मन किया उस दिन उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और यही सारा कुछ सिखा करके उन दोनों को तैयार किया जाता है, बड़ा किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो महिला हिंसा का कारण है, हिंसा की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा कारण है कि महिला एक तरह से एकदम नीचे तबके में होती है और उसके हाथ में किसी भी तरह का पावर नहीं होता। यहाँ तक कि जिस दिन एक आदमी उसको घर से निकाल करके बाहर खड़ा कर देता बहुत आसानी से कि तेरा यहाँ कोई नहीं है, उस दिन उसके पास तो मायका भी नहीं होता कि वो मायके में जाकर के रह सके, क्योंकि न उसके पास मायका है न उसके पास ससुराल है। भाषा में भी बुंदेलखंड में ये बोला जाता है कि ससुराल में हमेशा उसको कहते हैं कि ये पराई जाइए, मतलब कि कहीं और जन्म लिए, ये इस परिवार की तो है ही नहीं। और मायके में कहते हैं पराया धन है, मतलब मायके में भी पराई है और ससुराल में भी पराई है। दूसरा पॉइंट है कि उसको शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि उसे किसी के आश्रित रहना है। मायके में बचपन में माँ बाप भाई और फिर उसके बाद पति, पति के पास बाद बेटे, तो मतलब ये जो सिलसिला पूरा चलता है ये बुढ़ापे तक चलता है और वो किसी के सहारे होती है। इसीलिए ये बैलेंस, अगर हम हिंसा की बात करें तो ये हिंसा मतलब चरम सीमा पार करता है। मतलब हम मारपीट और खाली मतलब गाली गलौज या परिवार के अंदर यौनिक हिंसा तक नहीं जाते, बल्कि अगर मैं सवर्ण महिलाओं की बात करूं तो सवर्ण महिलाओं को तो यहाँ तक है कि उनकी बात भी बाहर नहीं निकलती है, मर जाती है वो, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। तब शायद लोगों को पता चलता है कि वो औरत मर गई। थैंक यू पुष्पा। बहुत इम्पोर्टेंट कि जाति और हिंसा के संदर्भ में शायद जाति के मायने बिल्कुल अलग तरह से आते हैं औरतों के साथ में, और वापस आएंगे हम इन चीजों को और लेके। डॉक्टर मनोज, Yes. First of all, thank you for inviting me to this panel, and a big apology for not being able to speak in Hindi, particularly to Pushpaji and everyone. I'm sorry about that. I understand. So I heard all of you, and I fully agree with all the points made. What I think my role in this panel would be to focus more on the mental health aspects, because that's what I do. You're all working in this area from the gender-based violence point of view. Whereas for me, it is working from the mental health point of view. Okay. So the interface between violence and mental health is one aspect that I would feel confident to talk about. The other thing is how we do what we do. We'll come back to that later. And I'm hoping that will be of practical use to all of you. And outside of this panel also, I'm very happy to help all the various organizations with mental health input. So our experience in all strata of the society, working mostly in Kerala, which is supposed to be more developed, but in many ways it is not. So the first point is that violence, particularly gender-based, and here really we are talking about violence against women. I mean, technically, definitions have to be correct, but really we are talking about violence against women and minorities. And that is from top to bottom, all strata of society.
And as Pushpa said, it is all to do with power. Now, the tragedy is that the power equations are such that even in Kerala, the real tragedy is that a lot of people have so internalized the power imbalance that they don't even react, even when really they can react. Because the economic angle is usually what prevents people from reacting or seeking help. But we see people who are employed, doing educated, employed in good employment, but still, unable to empower themselves. So part of our role in many of the situations is to try to be with people, whether they are from gender and sexual minorities, or whether they are victims of women victims of abuse, violence. Our first role is always to stand firmly with the people so that a process of empowerment begins. Of course, the mental health aspects then come into it, because people are very obviously, and you're all probably, you have all seen that, are scarred in various ways by their violence, by their experience of violence. And if it is from childhood, then that is when the scars are the deepest. And there is increasing evidence that children who face adverse circumstances, violence, and so on, particularly sexual violence, their brain development itself is affected differently. So it is no wonder that when they grow up, they develop more psychiatric problems. So initially, when we are as an organization, we have been working in the community mental health field, predominantly amongst the poorest sections of the population, as Archana said, tribal and coastal folks. Initially, as a small organization, our role was to try to help with the mental health aspects of victims of violence. As we have grown, we are now trying to take a different step in that. Instead of waiting for mental health problems to manifest, it makes sense to try for primary prevention of these problems. Now, primary prevention, the term means that you address the social causes of mental ill health. Not just violence, but poverty, number one, violence, disempowerment, illiteracy, the whole gamut of social issues which give rise to mental health issues in the future. So our approach has gradually changed to try to, at the grassroots level itself, not just help people who have, as a result, mental health problems, but work at an earlier stage, particularly with schools, particularly with women's groups, so that hopefully some of these mental health problems do not arise. And this we work in either on our own or with other NGOs or other organizations. Because I'm sure your experience might also be the same, that in your lines of work, when you come across people who also require mental health, specialized mental health input, you will probably have difficulty accessing that. I'll be surprised if you have easy access to good mental health facilities, whether counseling, medication, whatever. And what colleagues tell me is that a lot of your work is hampered because of that. So that is where we position ourselves as trying to do a lot of it ourselves, but also being there for other groups whose work is much more targeted. For example, I don't know if you have heard of an organization based in Calicut called Anveshi. It is one of the pioneering organizations in India. So we work very closely with them. And mostly the issues are of domestic violence and gender-based violence. We also work with gender and sexual minority groups, again based in Calicut and other places. Because our problem is access. So we can't just turn up and offer a service that will not be accepted.
But whereas organizations like yours, if we work together with similar organizations, we find that both these aspects, that is provision of mental health care for people who are harmed by it, and the other aspect, preventing problems happening by, like all of you do, working at the grassroots level, with the help of lawyers, with the help of other organizations, and basically focusing on individual empowerment, resilience, helping people find shelters if needed, empowering them all the time to stand up for themselves. That is what we try to do. Thank you. Thank you so much, Dr. Manoj. And very interesting ideas. And I think we will unpack those, like social causes of mental ill health, and then how do we see them as part of gender-based violence? Like what are the social, I mean, these are the social sort of, this is also violence in a way, as I'm hearing you. And how do we bring it under the fold of gender-based violence? Varsha, can we come to you now? Yes, sure. Thank you. First of all, I just want to, start with a big thank you to Archana ji, Nirantar, and Third Eye for, arranging this platform for all of us to at least come and brainstorm, think about such an important topic, and also so glad to be, sharing this platform with the wonderful co-panelists. When Archana ji was talking about PLD, just, to say that we are a legal resource group. हम लोग एक legal resource संस्था है जो social justice और महिलाओं के अधिकार के ऊपर काम करते हैं. और हमारा मुद्दा gender based violence के सारे aspects जो law के related हैं, और कैसे हम gender based violence के जो issues हैं उसको हम लॉ से कैसे रिलेट करके हम कुछ उसका वैसे समाधान निकाल सके, हम उस पे काम करते हैं. और हमारा बहुत सारे स्ट्रेटजीज में 3 प्राइमरी जो हमारे स्ट्रेटजीज रहते हैं वो है कैपेसिटी डेवलपमेंट, जो कि हम बहुत सारे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के कानून के ऊपर, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कानून के ऊपर, यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पे जो होता है उसके ऊपर, विच हंटिंग पे भी हमारा बहुत काम रहा है. और अगर हम देखें कि शिफ्ट क्या है, या फिर जो हम पहले एक हम स्ट्रेट जैकेटेड फॉर्म में जेंडर बेस्ड वायलेंस को सोचते हैं, क्या शिफ्ट है क्योंकि पहले हो सकता था कि पैट्रियार्की है, बट द डिफरेंट फॉर्म्स या फिर जैसे हम इसको पहले सोचते थे, मे बी वो सोच बदला है. एंड सर्टेनली हमें ये रियलाइज होता है कि गैप बहुत है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग फर्दर अवेयरनेस. हम समझते हैं कि कानून है, बट जब हम डिस्कशन करते हैं ट्रेनिंग्स में, हम गवर्नमेंट्स के साथ बहुत काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ करते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के साथ, एक और सीएसओस के साथ भी अक्सर एक क्वेश्चन जो आता है जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस का कानून का बात करते हैं, तुरंत एक बात आता है कि इसमें पुरुषों का क्या है, हमें क्या मिल रहा है, हम तो विक्टिम्स हैं, रादर हम विक्टिम्स हैं. सो ये जो माइंडसेट या ये जो थॉट प्रोसेस दैट कानून सबके लिए है और ये महिलाओं के लिए किस लिए बना है, ये समझाना. और कभी-कभी जब हम बात करते हैं लगता है कि सही बात है, हम अगर इसको एक स्ट्रेट जैकेटेड या ब्लैक एंड व्हाइट में लें कि सिर्फ पुरुषों से वायलेंस आता है और महिलाओं के ऊपर होता है, हमेशा ये चीज नहीं होता है, या फिर हम इसको हमेशा एक ब्लैक एंड व्हाइट प्लेटफॉर्म में नहीं देख सकते हैं. एक और चीज जो हमारे सामने आया लॉकडाउन के टाइम, और आंकड़े बताते हैं कि बहुत जब पैंडेमिक पोस्ट पैंडेमिक आंकड़े बताते हैं कि बहुत वायलेंस का परसेंटेज हाई हुआ है. ऑल्सो हम ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट
ये भी काफी बढ़ा है। रिपोर्ट्स बोलते हैं कि 80% तक ऑनलाइन हैरेसमेंट महिलाओं के ऊपर और बढ़ा है। सो ये जो एक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है, जिसमें चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो इसको हम कैसे, जैसे एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ हम काम किए, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट अपना तैयार करना चाहे, जिसमें सिर्फ ऑनलाइन हैरेसमेंट क्या है उसको डिफाइन करके, क्योंकि उनका एक एक कोर्स पूरा ऑनलाइन हैरेसमेंट ऑनलाइन रहता है, तो वो कैसे उस ऑनलाइन हैरेसमेंट में डील करे, जहां पे कभी कभी जरूरत है कि आप कैमरा ऑन करें, बट कभी कभी जब पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट लाइफस्टाइल से आते हैं। सो और कॉर्पोरेट्स में देयर आर केसेस हम सुने हैं जहां पे आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा आप कैमरा हमेशा ऑन रखें, बट समटाइम्स देयर आर जजमेंट्स ऑन दैट आल्सो। सो ये जो सारा एक नया स्पेक्ट्रम आया है ऑफ इश्यूज, इसको भी दिस इज आल्सो नीड्स टू बी टैकल्ड, और ये हम कितना तक इस पे सोच पाए और आगे हमें कितना करना है, ये शायद इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको हमें और सोच के इसके ऊपर काम करना जरूरी है। सो मुझे लगता है प्राइमरीली ये सारे गैप्स एविडेंट हैं। थैंक यू वर्षा। मैं कहूंगी कि बहुत ही, आई थिंक पहला ओपनिंग क्वेश्चन ने ही काफी कुछ चीजें नई खोल दी हैं, जिसमें कि हम एक मतलब हम जब जेंडर बेस्ड वायलेंस के कारण में जाते हैं तो सिर्फ वो जेंडर्ड नॉर्म्स ही नहीं, लेकिन सोशल कल्चरल नॉर्म्स को भी हम कैसे देखते हैं, जो कृष्णा कह रही थी, और वो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। हम उनको सिर्फ एक स्ट्रेट जैकेटेड जो मेन स्ट्रीम की समझ है उसके साथ नहीं जा सकते। दूसरी तरफ फॉर्म्स ऑफ वायलेंस भी कितने अलग हो सकते हैं। फिर जो कोयल कह रहे थे कि किस तरह से नेटल फैमिली वायलेंस को हम कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, खासकर युवा लोगों के संदर्भ में वो एक बड़ी समस्या आती है। फिर हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन को कैसे समझते हैं, और जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का जब मार्जिनलाइजेशन क्लब होता है तो किस तरह का हाइटेंड वायलेंस होता है। मुझे लगता है अभी उसका स्पेस अभी नहीं उतना खुला है। फिर जो स्टेट और सिस्टमिक फेलियर की वजह से जो वायलेंस होता है उसको हम कहाँ जेंडर बेस्ड वायलेंस में देख रहे हैं। हम हमेशा जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी देखते हैं, लेकिन स्टेट वर्सेस कम्युनिटी में शायद अभी हमने उतना बात नहीं किया है। पावर इम्बैलेंसेस ऑफ कोर्स, आई मीन ये तो एक बड़ी लड़ाई है, बट वो पावर इम्बैलेंसेस अभी भी कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। जाति के संदर्भ में हम हमेशा जाति और हिंसा को देखते हैं कि जातिगत हिंसा होती है, लेकिन किसी की जाति ही उसकी पे हिंसा का कारण बन सकती है, वो हमने देखा। लेकिन जो पुष्पा कह रही थी कि किस तरह से सो कॉल्ड जो जनरल कैटेगरी की औरतें हैं उनके लिए एक्चुअली हिंसा की बात करना ज्यादा मुश्किल है, तो शायद ये आयाम अभी तक हमने उतने नहीं खोले हैं। फिर जो डॉक्टर मनोज कह रहे थे कि मेंटल हेल्थ में एक ये इंटरनलाइजेशन जो पावर का है, जो कि हम इंटरनलाइज करते हैं और फिर हम सहते हैं और उसका जो हमारे पे असर पड़ता है। और फिर जो सोशल एज अ कॉज, आई मीन जो सोसाइटी जिस तरह से हमें ट्रीट कर रही है वो क्या वो भी हिंसा का एक कारण बन सकता है। और जो आप कह रही थी वर्षा, वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के तारीख में अगर हम देखें तो हिंसा के प्लेटफॉर्म्स भी बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं। ऑनलाइन हिंसा बिल्कुल एक नया आयाम हमारे सामने उभर कर आया है, ऐसा और ये एक बहुत बड़े लेवल पे मतलब चीज नजर आ रही है हमें। तो एक तरह से देखें तो स्पेसेस ऑफ वायलेंस भी चेंज हो रहे हैं। It's no more just the domestic space and public space, but the online space itself has become a big this thing. And now with all of this, I'm also curious, and I really want to come very specifically to one point जो हमें लगता है, और निरंतर के पिछले भी 15 सालों के काम में, और आप लोगों ने भी अपने काम में जरूर देखा होगा कि आमतौर पे जब जेंडर और यौनिकता
हमारे साथ साथ में चलते हैं। मतलब जितना यौनिकता जेंडर को गढ़ती है उतना ही जेंडर भी यौनिकता को गढ़ता है। तो ये और इसका हिंसा के साथ में भी एक गहरा जुड़ाव है जैसा हम समझते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि यौनिकता के हमने ये तो देखा है यौनिक हिंसा होती है, यौनिकता को हमने एक तरह से फॉर्म ऑफ वायलेंस में तो समझा है, बट एज अ कॉज ऑफ वायलेंस। बट यौनिकता क्या कोई कारण भी है जिसकी वजह से वायलेंस होती है? और इसको हम अपने अपने कामों के संदर्भ में फिर से अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें and specifically come to the issue of sexuality and its linkages with gender-based violence, and if you could also reflect a little bit about आप लोगों को क्या लगता है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस का पे काम हो रहा है, क्या उसमें ये लिंकेजेस को देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, और अगर जरूरत है देखने की तो आपको क्यों लगता है कि ये होना चाहिए? एंड इफ वी कैन स्टार्ट विद पुष्पा। पुष्पा, आपको सवाल क्या मैं दोहराऊं या यौनिकता और जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो जुड़ाव हैं आपने अपने काम के संदर्भ में, क्योंकि आप बहुत डायरेक्टली कम्युनिटी लेवल पे काम करती हैं, और जी। उसके बाद में हम कृष्णा आपके पास आएंगे। आप भी अगर थोड़ा शेयर करें कि आपने उसको किस तरह से अपने काम के अनुभव में देखा है, एंड देन विल कम टू कोयल, एंड देन डॉक्टर मनोज, एंड देन वर्षा। जी या पुष्पा। जी। तो जब हम हिंसा के परिप्रेक्ष्य में यौनिकता का मुद्दा देखते हैं, तो शुरू में जब हमने काम शुरू किया था हिंसा पे, तब तो हम इतना मतलब यौनिकता को नहीं देखते थे, बल्कि हिंसा को देख करके और उस पे काम करते थे। लेकिन निरंतर के साथ जुड़ने के बाद जब हमारी यौनिकता की ट्रेनिंग हुई एक कार्यकर्ता लेवल पर, और हमारी खुद की समझ यौनिकता के मुद्दे पे बनी, तब शायद हम जो भी हमारे पास हिंसा के केसेस आते थे उसमें हमने यौनिकता को समझना और देखना, फिर उसको हम अपने काउंसलिंग प्रोसेस में जोड़ना, ये सारी चीजें हमने शुरू की थी। तो जैसे मैं कहूँ कि बहुत सारे केसेस आते थे, महिला अपने घर में हिंसा झेल रही थी, लेकिन बार बार हमारे पास आती थी और कहती थी दीदी मुझे तो उसी घर जाना है, आप मुझे वापस भेज दीजिए। लेकिन जब हम यौनिकता वाले मुद्दे को जेंडर की नजर से देखा और यौनिकता की नजर से दोनों को मिला करके देखा, तो ये हुआ कि महिलाओं को यौनिक इच्छा के लिए, क्योंकि वो भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, वो भी हमें उसकी जरूरत है, तो कहीं जगह नहीं होती। एक शादी का ही वो होता है कि वही एक जगह होती है जहां पर मैं अपनी यौनिक इच्छाओं को पूरी कर सकती हूँ। तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हमारे पास निकल करके आया था कि किस तरह वो महिला हिंसा भी झेल रही है, फिर भी वापस ससुराल जाना चाहती है, क्योंकि उसकी यौनिक इच्छाओं की जगह पूरी करने की मुहिम पर है। दूसरी चीज, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के केसेज आए। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि खास करके अगर हम महिलाओं की केसों में देखें, तो महिलाएं जो यौनिकता वाली बात है वो जल्दी सामने नहीं रखती हैं, उसको काफी उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उससे वो चीज निकलवानी पड़ती है, काम करना पड़ता है, इसके बाद फिर वो चीज सामने निकल करके आती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेज हैं। जैसे एक केस हमारे पास आया था, वो महिला वो हिंसा के लिए आया था कि मेरे साथ मारपीट होती है, मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया गया, लेकिन लास्ट में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। बात ये थी कि वो महिला जब ससुराल में रहती थी तो उसके साथ पति यौनिक रिश्ते नहीं बनाता था, और वो बार बार ससुराल से निकल करके और बस भगती थी, उसे जैसे उलझन होती थी, वहां वो रह ही नहीं पा रही थी। तो ये चीज निकल करके काउंसलिंग के दौरान आई और फिर उसमें हमने काम किया, और आज वो केस सॉर्ट आउट हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से दोनों लोग रह रहे हैं। उससे उसके अलग अगर मैं और भी केसों में जाऊं,
तो बहुत सारे मतलब ऐसी यौनिकता के कारण होते हैं, इच्छाएं होती हैं, कब मेरा मन कर रहा है, कब मेरा मन नहीं कर रहा, उससे मुझे तकलीफ होती है, या अलग तरीके से रिश्ते स्थापित करना जिससे मैं मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे उससे तकलीफ होती है। तो इस तरह के भी मुद्दे हमारे सामने आए जब हमने यौनिकता के पॉइंट्स को लिया और यौनिकता पे काम किया। उसके बाद फिर सबसे सॉरी संगठन की महिलाओं की भी यौनिकता की एक ट्रेनिंग की, जिससे हमने अलग अलग तरह के आयामों को इस्तेमाल किया उनके साथ कि हमारी मतलब हमारी अगर हमें अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है तो और भी जगह हो सकती हैं, हम उसको स्थापित कर सकते हैं किस तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगा। मैं आज की तारीख में इतने आसानी से बता रही हूँ लेकिन ये शायद आसान नहीं था। और फिर देखा जाए तो अगर मैं वनांगना में जमीनी स्तर का अनुभव रखूं तो आज की तारीख में काफी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने श्रम की ताकत को समझी है, अपनी यौनिकता को समझी और अपने आप को स्थापित किया है और स्थापित करके अपने घर में या तो अकेली रह रही है या तो अपने बच्चों के साथ रह रही है और वो अपने हिसाब से जीवन यापन कर रही है। लेकिन बस मैं कहना ये चाहूंगी कि यौनिकता में हिंसा भी है। बहुत बार यौनिकता पे जैसे हमारी युवा महिलाएं हैं, युवा किशोरियां हैं, जब वो कहीं पर किसी के साथ उनका कांटेक्ट होता है और तो वो एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। जब वो भूचाल आता है तो उस चीज को केवल परिवार और केवल व्यक्ति के साथ न रह करके जब सामुदायिक स्तर पर सार्वजनिक तरीके से हमको वो माहौल बनाना पड़ता है तो वो काफी चैलेंजेस होता है हमारे लिए। बल्कि हमें भी लोग जो कहने को कहते हैं, लेकिन हाँ ये एकदम सच है कि आज की तारीख में हम यौनिकता के मुद्दे को अपने प्रोग्राम के साथ बुन करके काम करते हैं और उस पे हम आगे भी बढ़ते हैं। Thank you, Pushpa. This was quite an interesting way, the way you said, weaving sexuality within the work of gender-based violence. Exactly. Shall we go to Krishna now? Krishna, आप बोलेंगे? थैंक यू। काफी सारी चीजें पुष्पा ने जो बताई है वो स्वाति भी ऐसे ही विवेक करती है। पर जिस हिसाब से समझा है हमारा ज्यादातर काम किशोरियों के साथ होता है, तो किशोरियों के साथ यौनिकता का मुद्दा जब निकलता है तब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उन लोग को पता भी नहीं होता है उसके बारे में। मतलब वायलेंस इज द वन थिंग, मतलब मार पिटाई उनको समझ नहीं होती है, उनको पूछने पे जो हिचकिचाहट होती है, मतलब जो संकोच होता है वो काफी उनको समझ नहीं बनी रहती है। सो हम कैसे हम उनको समझ, मतलब जब हम लोग ने सर्वे भी किया था आई थिंक अराउंड 2016-17 के आसपास, तब समझ में आया था जो हिंसा यौनिकता की हिंसा होती है वो तकरीबन 17 गांवों में अराउंड 16% से लेके 18% जो हिंसा है वो पब्लिक स्फीयर में भी होता है, जो बाहर मतलब अनसेफ ट्रैवलिंग में भी उन लोग को ये सब सहन करना पड़ता था। सो ज्यादातर जब किशोरियों के साथ काम करते हैं हम लोग ये ट्राई करते हैं कि उनको कैसे एंगेज करें, और एंगेज करने के लिए हम लोग स्पोर्ट्स का माध्यम लेते हैं। तो उनको नेशनल स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उसके थ्रू एंगेज करते हैं, अलग हॉकी वॉलीबॉल वो स्पोर्ट्स में एंगेज करते हैं, उसमें ही हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि कोई सत्र इंक्लूड किया जाए।
और वो 17 हम लोग सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मतलब पहले ही टाइम में कुछ बोलते नहीं है, पर जब मतलब आई विल एक्चुअली इट इज मोर देन अ ईयर जब लेते हैं वो ओपन अप होने के लिए, जब वो कंफर्टेबल होते हैं और ये सब चर्चा करते हैं। काफी सारी बार ऐसा हुआ है कि मतलब यौनिकता के बारे में अगर बात किया जाए तो मतलब घर से ही, मतलब खुद के नेटल फैमिली से ही इतना प्रेशर रहता है कि यू नो मतलब हाउ डू दे हैव टू परफॉर्म इन देयर ओन, इन मतलब इन लॉज के जो फैमिली हस्बैंड के सामने है वो कैसे उन लोग को परफॉर्म करना है। सो दैट प्रेशर भी बना रहता है इन दिस, बिकॉज चाइल्ड मैरिज और सब कुछ काफी कॉमन है। तो you know at a very delicate age actually they are pressurized to have such kind of a relation जो उन लोग को समझ भी नहीं है and it is not legal also. So वो becomes it becomes इतना complex बन जाता है कि I think the girl is in such a kind of a situation कि वो कौन सी चीज हैंडल करे समझ में नहीं आता। and through also you know what is the strategy, मतलब कैसे हम लोग इसमें इंटरवीन करते हैं। हम लोग डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करते क्योंकि you know it becomes a very tedious task कि हम लोग को वो विलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। So how, मतलब we can't create awareness. Awareness is something that we can do about it because the gates get closed because of that. So how do we intervene? So intervening through some activities like sports and everything is our way to actually, you know, involve ourselves and helping out girls over there. So this becomes a strategy for us. And you know, वहाँ पे और एक बात है कि कैसे होता है कि फ्रेंड कर रही है ना, फ्रेंड खेल रही है ना, तो हम भी खेलते हैं करके। सो द पीयर इन्फ्लुएंस बिकम्स वेरी नाइस ओवर हियर। तो उसके हिसाब से अगर पीयर बोल रही है सेक्सुअलिटी के बारे में तो हम लोग भी बात करते हैं उसके बारे में। सो वो इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा यहाँ पे बना रहा है एंड फॉर विच इट इज अ बेनिफिट टू अस आल्सो दैट वी कैन such open conversation and safe circles actually. So this is a very benefiting kind of a strategy that we are applying it over there. Yeah, thank you, Krishna. And like you said, though Swati believes in sexual agency of young girls, but you just can't go into the communities and talk about it. And of course, controlling sexuality of young girls is a community mission. It is their project. And again, I think just again, drawing on that conversation that then that itself is a violence. You know, controlling sexuality and then expecting them to be of certain kind of girls itself is you know the beginning of the violence and the connection of sexuality and violence. Can we go to Koel now, please? Koel, are you there? Oh, seems like Koel has they dropped out? Okay, no problem. We'll come to Dr. Manoj, and when Koel joins, we'll go back to them. Yes, thank you. Yeah, I think what is emerging from these discussions is that as our lives and as our society becomes more complex, the issues are also becoming more complex. Prior to the era of mobile phones and technology, the violence was much more predictable in terms of, as I said earlier, in terms of understood in terms of power imbalance, in terms of traditional patriarchy, hierarchies, systemic issues, and so on. But now it is becoming more and more complicated when we look at it from the point of sexuality, particularly among young people, because the usage of mobile phones for pornography is very rampant. I don't know about in your societies, but it is very rampant. And it starts in schools at very young ages. Uncensored pornography with violence is often the norm. So a whole new generation is growing up with
very distorted notions of sexuality and their role. And because of the peer pressure, which can work in positive ways as well as negative ways, there is a kind of pressure felt by girls to conform to certain forms of, or to be subjected to certain forms of violence. In other words, normalizing sexual violence. And as I said at the beginning, of course, from my vantage point of mental health, we are also dealing with the fallout of these issues. So while working at the grassroots, trying to prevent these issues, empowering people is the need. Unfortunately, we are seeing the victims, the survivors of all these. And it is increasingly younger people from this point of view of mobile phone influenced, usually Western pornographic models. This we find as an increasing problem. And once it comes to light, of course, society reacts, but again, the victimization is even more after social family reactions. So this is another aspect which is complicating an already complicated picture of gender-based violence. This is what we are coming across increasingly. Thank you, Dr. Manoj. Yeah, this was really interesting, that this mix of online and sexuality and how this is now leading to new and complex and layered ways in which violence is unfolding. Varsha? Yeah, just Krishna ji ne jo bola, just taking from there, PLD ka actually एक series of research publications raha hai on adolescent sexuality, and clearly, that inhibition or that, not wanting, wo jo exploration, that which probably is obvious with the adolescents, usko jo ek, marking it wrong, or usko that should not be, jo wo wala jo ek, like Archana ji again said, if we can term it as society's moral policing, or not recognizing it, actually has its own further terrible consequences. Like there are adolescent girls who run away to again go away from this social pressures, or pressure of work, or pressure of family. They run away, but then again wo log, if they run away with a boy who is again under 18 years, and there has been these implications of POCSO cases. Fir again the whole cycle of their life being into, kyunki POCSO ek baar hota hai, then they get into jail, and the whole process continues. So it's rather than not identifying or understanding or acknowledging rather that adolescent sexuality को एक समझ देने से हम जब उसको एक बंद कर देते हैं, उसका और गलत consequences आता है. Now regarding, क्योंकि हम लोग बहुत policy processes में भी काम करते हैं, तो एक particular area जहाँ पे हमने देखा है कि there is a challenge कि जो हमारा, अगर मैं एक specific कानून जो कि sexual harassment at workplace है, मैं अगर उसकी बात करूँ तो वहाँ पे clearly है कानून के अंदर कि ये कानून महिलाओं के लिए है, मगर कहीं पे ये नहीं mentioned है या clearly लिखा गया है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन और आईसी जो कि इंटरनल कमेटी है, वो 10 से ज्यादा लोग जिस संस्था में काम करते हैं, वो लोग एक इंटरनल कमेटी का गठन करना उनको पड़ेगा. तो कहीं ये नहीं लिखा है कि आप एक जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी नहीं कर सकते. सो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस आजकल अपने पॉलिसी में, जो कि उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस पॉलिसी, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्कप्लेस पॉलिसी है, उसमें वो उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि ये पॉलिसी हमारा जेंडर न्यूट्रल है, कि ऑल्दो लॉ बोलता है कि सिर्फ महिलाएं आके इस पे कंप्लेंट कर सकते हैं,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम सारे कंप्लेंट्स लेंगे, बट अगेन टू गो अ स्टेप अहेड, क्या हम इसको और थॉट थ्रू करते हैं एज ऑर्गेनाइजेशंस की हम इसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम इसको जेंडर न्यूट्रल करेंगे, बट अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो इसका फॉलो अप क्या होगा, आईसी कैसे इस पे काम कर सकती है? क्योंकि जो कानून है उसमें बोला गया है कि पुलिस के साथ भी आप साइमल्टेनियसली पैरेलली आप आईसी के साथ भी कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस के साथ। अगर एक जेंडर न्यूट्रल केस आता है तो फिर हम कहाँ जा सकते हैं? क्या हम पुलिस के पास जा सकते हैं? ये जो सारे सवाल आते हैं इस पे शायद क्लैरिटी नहीं है, इस पे शायद डिस्कशंस हैं। और यहाँ पे मैं बस बोलना चाहूंगी कि ये जो सारे कमियां और हमने देखा कि ये इस तरह के सब सवाल हम सब जो काम करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, एज ट्रेनर्स, एज आईसी मेंबर्स, हम सब इससे जूझते हैं कहीं ना कहीं। तो हमने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस रिसोर्स पूल, जिसको हमने शार्प का नाम दिया है, वो 1 साल से हमारा इट्स अ फेमिनिस्ट कल्चर ऑफ शेयरिंग एंड लीडरशिप सपोर्ट प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, जहाँ पे सब लोग जो इस मुद्दे पे काम करते हैं they come and they discuss and अपने काम में अगर किसी ने ये काम कोई मैं अगर हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, कोई हमारे पास ऐसा एक केस आया जिसमें कुछ इश्यूज आए, हम उसको फिर ग्रुप के साथ शेयर करते हैं। अगर वैसा किसी के पास एक्सपीरियंस है और कोई उसको एक एज अ बेस्ट प्रैक्टिस किए हैं उस पे काम, तो एक सपोर्ट ग्रुप क्रिएट हमें लगा कि जरूरत है, तो वो हमने क्रिएट किया है। थैंक यू वर्षा, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अगेन। आई थिंक जितनी हम बात कर रहे हैं उतने नए नए चीजें खुल रही हैं, और ये जेंडर न्यूट्रल इज सच एन इंटरेस्टिंग आइडिया। आई थिंक at some level none of us will go against it, but on the other level, like you said, there has to be a more thinking around it. It just can't be like in that superficial gender equality mode mein ki sab kuch gender neutral kar do, because the world is still not gender neutral. So how do we really look at it? So बेसिकली जो सेक्सुअलिटी के लिंकेजेस हैं, मैं मतलब जो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई हैं कि सेक्सुअलिटी का जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ में रिश्ता, एक तो जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन एज अ कॉज ऑफ वायलेंस। आई मीन आई थिंक अ लॉट ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट लॉट पीपल who exercise, who practice different sexual orientations, they face violence because of their choice. But what is not being really recognized within the gender based violence discourse is sexual needs of women facing violence, and how is that also a problem, particularly for interventionist, जो पुष्पा भी कह रही थी कि हम समझ नहीं पाते हैं कि चीजें क्यों हो रही हैं, और हमें लगता है कि क्यों ये औरत इस तरह से कर रही है, जब इसके साथ वायलेंस हो रहा है तो ये क्यों वापस घर में जा रही है, और ये फ्रस्ट्रेटिंग है कार्यकर्ताओं के लिए। तो जब तक हम ये सेक्सुअल नीड्स भी समझने की एक जो गैप लगता है, फिर ये सेक्सुअल कंट्रोल जो एक बहुत बड़ा रीजन है वायलेंस का, कि व्हेनेवर गर्ल्स, जो वर्षा भी कह रही थी कि जब अब सेक्सुअल एजेंसी विमेन और गर्ल्स एक्सरसाइज करती हैं तो वो कैसे एक कारण बनता है वायलेंस का, उसके शायद अभी तक उतना डिस्कशन, उतने चीजें नहीं आई हैं जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस का काम हो रहा है। तो अगर हम इसको जेंडर बेस्ड वायलेंस और सेक्सुअलिटी के लिंकेजेस को हमने देखा, प्लस ये जो नए मुद्दे उभर रहे हैं, चाहे वो जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज की हम एट वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एड्रेसल सिस्टम के तहत, या हम ऑनलाइन स्पेसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे नए नए फॉर्म्स ऑफ वायलेंस निकल रहे हैं, या फिर हम मेंटल हेल्थ या फिर जो सोशल systems and structures जिस तरह से बने हैं, how they have become the cause of violence, and किस तरह से systems and state and basically non-action of state as a reason for violence,
उसको भी हम कितना जेंडर बेस्ड वायलेंस के तहत एड्रेस करते हैं। तो मतलब मुझे मोटा मोटा मुझे ये दिखा है, जो नई चीजें आप लोगों से निकल कर आई हैं, मैं इसे वापस रख रही हूँ पैनल के लिए। तो अगर ये कुछ नई चीजें उभर रही हैं, ये कुछ नए मुद्दे उभर रहे हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है that what are the new ways forward, like what you think needs to be new ways of looking at this, particularly in the context of addressing these some of these issues. तो क्या नए रणनीतियां, क्या नए तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम ये जो नए उभरते मुद्दे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के संदर्भ में, खास तौर से नए स्पेसेस जहां ये हो रही है और यौनिकता के साथ जिस तरह के लिंकेजेस हमने एक्सप्लोर किए हैं, इनको एड्रेस करने के लिए। एंड मे बी वी कैन स्टार्ट विद कृष्णा and then go on to Pushpa, Barsha and Dr. Manoj. Yes, Krishna. Yes. So, of course, the strategy मैंने already discuss किया कि sports was one of them जो हम लोग involve करते हैं. But apart from that, I also feel कि मतलब engagement with the government bodies is very important, because for example, if the scheme मतलब कोई particular scheme है जो available है, like within the village, within certain places मतलब जहाँ पे available है, I think उसका use करना, उसके बारे में aware रहना is very important. So our take is like, once the awareness, for example, the violence जो हो रहा है for with widows also, जो जिस हिसाब से widows को so they are entitled to have widows pension also. So they need to be aware about it, and they need to actually utilize that scheme ताकि उनको benefit मिले. So once, see, there is something called as in terms of sexuality और सब में जो violence के हिसाब से है, we need to work with the Gram Panchayat together. It is not so routing it through the Gram Panchayat and trying to make them aware through different means will be a better idea, I feel, and then the citizenship element can come in, because it is the Gram Panchayat, the patriarchal roots say, it is rooted in the patriarchal system actually. So rather than making awareness, going to the Gram Panchayat with a proposal which indirectly speaks about, benefit to the woman in leading to a violence-free life is something that can be taken care of. And then good governance के accounting and good governance के साथ भी it is the right of the it is the duty of the person staying at the village, citizenship जो उन लोग को avail करना है. I think that will be the route to taking forward for avoiding such kind of a situation जहाँ पे violence emerge होता है. Also, second thing is that one of the things that have been practiced and has resulted the best is community engagement through art actually. So one of the strategy is like having discussions around the specifically, for example, I can give government within the village agar wall painting है, and that wall painting में वो जो discussions safe circles होते हैं जहाँ पे women can talk about why did they do this, why did they draw something, why did they paint something like this way, and what motivated to paint something like this way initiated by a professional. I think some of these strategies are really very helpful. So it is necessary that it is not going to be one person who is making a difference. Maybe one person can be a role model, but it is the community itself who needs to initiate these conversations and take it to the panchayat, because their charter demands will be
taken care of once they start inquiring about it. So this goes hand in hand, the good governance and the citizenship, both of them goes hand in hand actually. This is what I feel. Thank you. Thank you, Krishna. Pushpa? जी, तो मैं जो हमारी रणनीतियां हैं, एक तो मैं ये कहूंगी कि हम रणनीतियां केस वाइज तय करते हैं और केस वाइज ही हमें रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम केसों को देखते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके से, अभी अगर मैं ये जो हमारा कोविड वाला ये पूरा चला है, उसके बाद हिंसा के अलग अलग रूप हमारे सामने आए हैं। एक तो घरेलू हिंसा की, दूसरा हमारे यौनिकता से जुड़े मुद्दे। जैसे मैं अगर कहूँ तो हमारे इलाके में बहुत शादी के पहले माँ, वो जो किशोरियां हैं, मतलब पूरी बालिग थी, 20-22 साल की लड़कियां जो आपस में प्यार की और प्यार करने के बाद शादी के पहले ही माँ बनी, उनके साथ जिस तरह की हिंसा, मतलब एक कुंवारी लड़की को माँ बनना तो समुदाय में एकदम से भूचाल सा आ जाना, और फिर उसपे मतलब मीडिया भी हुई चटपटी खबर के साथ ये सब करना। इन पे जो हमने अलग अलग केसों में रणनीतियां तैयार की है, तो वो एक तो थी जो लीगल प्रोसेस पे अगर दोनों बालिग हैं और प्यार करते हैं, वो घर से, क्योंकि उन्हें पता है कि ना तो परिवार जगह दे रहा है ना समुदाय जगह दे रहा है, वो वापस गई बाहर कहीं, और बाहर जाने के बाद फिर उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अपहरण का केस हो गया। अब अपहरण का केस अगर हो गया है तो वो वापस आ रही है, तो फिर उसे उस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। उस समय हमने मायके और ससुराल दोनों की काउंसलिंग करके ऐसी रणनीति तैयार की कि आपने अगर अपहरण का केस बनाया है, बहुत बार तो ससुराल वालों की करनी पड़ती है एज ए रणनीति, कि वो उनका सपोर्ट करे, क्योंकि लड़के को तो जेल जाना है, अब लड़की झेले, उसके पास में बच्चा भी है, वो कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, तो उसके लिए एक जगह बनाना। तो ये हम काउंसलिंग के प्रोसेस से ज्यादा किए, और कभी हम मायके वाले पर ही ये काउंसलिंग करके प्रेशर डालते हैं कि आपकी लड़की है, जब तक आप प्रोसेस करके उस लड़की को बाहर वो नहीं आ जाता है, तब तक आपको अपने पास इस लड़की को रखना है। इस तरह का एक माहौल स्थापित करना, और इसका जो भी खर्च है इसका और इसके बच्चे का, ये आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की एक तो रणनीतियां बना करके काम किया है हमने। और दूसरा जो हमने काम किया है कि जो लड़कियों के, बहुत लड़कियों के तो 8 महीने 9 महीने हो गए तो उनका बच्चा हुआ, उनका जो एक माहौल बना था कि एकदम तमाशे की तरह देखना, सब लोग दौड़ लगा करके आ रहे हैं देखने के लिए कि उसकी तो शादी नहीं हुई, वो तो माँ बन गई। तो उसमें एक सामुदायिक तरीके से माहौल तैयार करना, खुली चर्चा करना, खुली मीटिंग करना, और फिर उस पे काम करना। और जब मैं हिंसा की बात करूं तो उसमें मतलब तब तक तो दोनों का प्यार बहुत होता है, लेकिन जैसे ही वो माँ बनती है वैसे ही लड़का बाहर चला गया, यहाँ कोई है ही नहीं, और उस लड़के को ससुराल वाले, क्योंकि प्रूफ है, लीगल पॉइंट में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें एज ए रणनीति काम करनी पड़ती है कि अब हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी तो चुपचाप उसको घर में लाना, उसको आश्वासन देना कि हम तो तुम्हारी शादी कर देंगे, बस ये बच्चे को हटा दो। मतलब 7 महीने का 6 महीने का बच्चा जब आप गिरवा रहे हो तो उसके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें जब हमें पता चलती, हम तुरंत वहां पहुंचते हैं, और पहुंच करके हमारी जो रणनीतियां होती हैं वो केस वाइज रणनीतियां होती हैं, और हम केस वाइज ही रणनीति तैयार करके केसों पे काम करते हैं। तो थैंक यू पुष्पा, बिल्कुल। वर्षा प्लीज। So some of
our work, I will just share हमारा कुछ अभी हमने अलग-अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट्स के साथ जो हमारे वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स स्टाफ हैं उनके साथ काम किया, और जब हम बातचीत किए उनको ट्रेनिंग देने से पहले या उनको ये समझाने से पहले उनकी रोल्स क्या है, उनको ये भी अदर देन दैट कि वो एक ओएससी मेंबर है या ओएससी स्टाफ है, उनको एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में हैं जहाँ पे एक तो ओएससी सेंटर्स नहीं है, और अगर कुछ स्टेट्स जैसे उड़ीसा में ओएससी सेंटर्स हैं और वो काम कर रहे हैं, बट वो जो लिंकेजेस, क्योंकि पुलिस, हॉस्पिटल, सबका लिंकेजेस और लीगल सर्विस अथॉरिटी उसका लिंकेजेस कैसे बनाएं, या फिर बहुत सारे इनफैक्ट उड़ीसा में, भोपाल में, ऐसे बहुत सारे जगह में ओएससी स्टाफ ही जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो काम है, जैसे कोई एक डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट आता है, उनको जो फाइल करना होता है वो ओएससी स्टाफ है। सो और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका वो शायद काम नहीं है, उनको लगता है हाँ हमें बोला गया तो हम कर रहे हैं। सो और फिर उनका जो क्वेश्चन आता है कि हम तो समझ गए कि ये प्रॉब्लम है, बट हम आगे कैसे बढ़े इससे। सो ट्राइंग टू नॉट जस्ट और वो ब्लैंकेटेड हो भी नहीं सकता है कि ये एक प्रॉब्लम है और ये इसका सॉल्यूशन है, तो रैदर आप कैसे गवर्नमेंट्स के साथ बात करके इस चीज को आप बार बार मुद्दों को उठाएं, या फिर सीबीओस को ऐसे एंगेज करें कि वो समझें कि आगे चल के उनको कैसे गाइड कर पाए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस पे हम काम कर रहे हैं। और जैसे कृष्णा जी ने बोला कि गवर्नमेंट्स के साथ काम करना बहुत important है, other than the other awareness और capacity building जो sessions हम करते हैं, because with governments वो stakeholders जिनके पास जा सकता है ये information वो बहुत ज्यादा है, तो outreach level बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक चीज जो हमने देखा है कि जो अवेयरनेस या कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं वो इंटरसेक्शनल होना चाहिए। अगर एक मुद्दे पर भी है, हमें ये समझाना चाहिए कि कोई एक मुद्दा अलग नहीं है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस ही है तो हम आपको वो कानून बता दें, मगर उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी है। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस समझाएं या सेक्सुअल हैरेसमेंट समझाएं, बट हम ये नहीं समझते हैं कि जेंडर क्या है, कास्ट, क्लास और जो इंटरसेक्शनैलिटी का पूरा एस्पेक्ट है वो हम नहीं समझाएं, तो फिर प्रॉब्ली एक पूरा फुल स्पेक्ट्रम नहीं समझ में आएगा, और प्रॉब्ली वो फिर आगे चल के वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन पर हम नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर उसका वो कैसे उसको सॉल्व करें, एक बार अवेयरनेस या कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन हो जाए, वो हो सकता है लैग हो। तो हम उस पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि इंटरसेक्शनल अप्रोच रखें, और एंड स्पेशली विद द काइंड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट वी आर इन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हम फोकस करते हैं विच इज आईईसी, और हमारे ऐसे आईईसी मटेरियल्स हैं। would invite everyone to watch our videos on consent. Of course हमने थर्ड आई के साथ ही किया है, so these consent videos also clearly say that कितना important है to understand, because the way we do white and black of it, कितना gray area है जिसको हमें explore करना चाहिए और जो हम नहीं करते हैं, and how we can rather than questioning how we should be accepting of it, इस वीडियोस में है। और इस तरह के बहुत सारे आईईसी मटेरियल्स इन थ्रू पोस्टर्स एंड लीफलेट्स हम बनाते हैं, क्योंकि उसका आउटरीच बहुत ज्यादा है। और लास्टली NAC, which is a National Coalition on Advocating Adolescent Concern, ये एक प्लेटफॉर्म है, क्रॉस सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशंस इसके पार्ट हैं, और हम इस पे इफ आई कैन से हम लोग बहुत एक्साइटेड थे टू एंड और हमने एक एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ एक ऐसे कंपटीशन किया टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, और जो उनके साथ जो कम्युनिटी लेवल पे उनके साथ जो अपने घर में हर तरह पे किस तरह से इश्यूज आते हैं, मगर हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करके हमने इसको बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे ताकि हम उनसे समझ पाए कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, वो क्या सपने देखते हैं,
और कहाँ पे उनको लगता है कि वो और ज्यादा कर सकते हैं, मगर बिकॉज ऑफ who they are in terms of in terms of their gender वो नहीं कर पा रहे. So I mean बहुत wonderful, we got beautiful responses. We had winners, but all the participants were winners in their own way, because हमें समझ में आया कि how beautifully और बहुत raw तरीके से they have given us their challenges, and also that a positive way उनसे हमें बहुत समझ सीखने को आया कि हम इस challenges को कैसे address कर सकते हैं. So मुझे लगता है कि again like art के बारे में कृष्णा जी ने बोला, something like where हम engage करें और उनसे भी समझें, खाली हम ना समझाएं. Be a very good strategy. Yeah. Stop here. Thank you, Varsha. Dr. Manoj. Yes, I think picking up on the points, and some of this has been already said about the intersectionality. When we discuss gender-based violence as an issue, all the time my mind is going to the number of factors, so all of which are interlinked. So while we have to focus on a particular issue, we also have to recognize that a lot of the issues are interlinked. Poverty, illiteracy, many issues are there, and it's for someone like me, trying to help individuals. We're trying to help individuals who are suffering because of the violence. And then we realize that it is difficult to deal with one problem alone, because things are all interconnected. And therefore, as Varsha put it, approaches have to be intersectional, and people have to work together and guard against focusing only on one aspect to the exclusion of others. That's the first point. The second point is linked in the sense that when it comes to the individuals, some of us will be working at the policy level, but some of us are working with individuals, like Pushpa said more than once about solutions through counseling. So when it comes to individuals, then there is a role for mental health training, so that we don't miss the wood for the trees, in the sense that, yes, it's a major, huge problem, social problem with multiple dimensions, and needs to be tackled definitely at the policy and governmental level. But what about the individuals who are going through it? How do we have mechanisms which are based more than on common sense and kindness? Now, counseling is a good example. Where does practical help giving, information giving end, and more kind of in-depth or more specialist work trying to mend the psyches begin? And in a country where there's a huge stigma about mental health interventions and lack of resources, how do we not lose track of the individual misery, the individual distress? It's something which I think we should think about and plan about. Thank you. Thank you, Dr. Manoj. And I do not think that this rich conversation can be now collated, in the end. But I still want to flag some of the important things that have emerged, particularly जो last session था, जो last conversation थी.
और जो एक बात मुझे लगता है सभी लोगों से निकल कर आई कि हमारी जो भी अप्रोच है जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेके, it has to be intersectional and multi-pronged. It has to look at all the issues that are impacting people's life, ranging from gender to sexuality to caste and all other kinds of marginalizations that are playing upon them. And it can't be single issue approach like you said, Dr. Manoj. It's very important because everything is impacting their mental health, and all of that is then impacting their relationships, and all of that then leading to certain kind of outburst, or maybe there are implications of the mental health issues in their lives. Second, which is again a very important thing, and I do not think we are talking enough within the discourse of gender-based violence, is state responsibility and the governance issue. What Krishna was saying, that we just cannot let system be away from this thing, because it is not an individual problem and it is not just a community thing. So it has to be a citizenship right to be kept at the center of GBV, and how we look at the rights and entitlements of people, and bring that also in the purview of gender-based violence. Thirdly, I think community approaches, like all of you are saying, it is not like one individual suffering and counseling that one person, or just providing access to this thing. What Pushpa was also saying, जो पुष्पा आप भी कह रहे थे ना कि एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, वो सिर्फ उस लड़की की समस्या नहीं है, वो पूरे समुदाय को के साथ हमको काम करनी है. Or I think even as feminist, as women's movement organizations, we all believe that women's rights, human rights, rights of non-binary gender people, these are all community problems. These are all community issues. These can't be pegged on one person or two people. So I think GBV का जो case work वाला चीज है, उस केस वर्क इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ में हम कैसे पूरी कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, वो एक उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. और कम्युनिटी को एंगेज करने के साथ साथ में जो एक बात निकल कर आई कि हम कैसे पॉजिटिव अप्रोचेस भी बिल्ड करते हैं कम्युनिटी में. तो आप सिर्फ ये समस्याओं के साथ में नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही नहीं एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन एजेंसी बिल्डिंग का काम भी कर रहे हैं, जहां पे आप चाहे आर्ट यूज कर रहे हैं या लेटर राइटिंग यूज कर रहे हैं, but you are also giving them space, you're giving and building their agencies to also assert themselves, because violence can't be just dealt by removing certain norms. You also have to rebuild and create new norms which will lead to gender equality and justice. I hope I have covered all the points, though because of the constraint of time, I try to just take the key points. But whatever that all of you have shared is so valuable. And thank you so much. आप लोगों ने इतना टाइम निकाला हमारे साथ में ये पॉइंट शेयर किए, and I'm sure जो कुछ भी चीजें निकल कर आई हैं, हम इनको आगे ले जाके फर्दर और बिल्ड कर सकते हैं. एंड ये एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ इन चीजों को फ्लैग करने का, बट मे बी दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी होंगी जब इनको हम थोड़ा और डीपन कर सकेंगे और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकेंगे. सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much you, Pushpa. everyone for joining today. Thanks.